भगत रविदास जी महाराज उस दौर ਦੇ बनारस ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਣਾ-ਕੋਣਾ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਚਮਾਰ ਔਰ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਮਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਖਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਰਤ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਦ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆਪ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੀ, ਐਸਾ ਅਗੰਮੀ ਸੰਗੀਤ ਆਪ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ। ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਗੀਤ परमात्मा दे बहुत निकट है, बहुत निकट है। संगीत एक कला है, गीत एक कला है, ते परमात्मा स्वयं भी एक कलाकार है। ऐसा महान कलाकार कि उसकी कला चारों पासे सानू देखण नूं मिलदी है। एक निक्का जिहा बीज धरती दे बो के जदों अंकुरित होंदा है, कोमल रूप उसका धरती तो बाहर निकलता है, सहजे सहजे विकसित होंदा है, शाखां पत्ते, फिर उस दे चों जद फुल खिड़दे ने, फल लगदे ने। एक ऐसी महान कला है कि उस अदुੱਤੀ कलाकार नूं दाद दिते बिना रह नहीं सकता मनुख अध्यात्म वासी। उसकी कला चारों पासे फैली हुई है, सागर दे चों भाप उठती है, उमड़ उमड़ के वो चारों पासे बरसती है। एक महान कला है। पहाड़ां दे झरनियां दी रफ्तार और एक गुंजार, चारों पासे दा वातावरण दरअसल उस महान कलाकार दी कला दी ही प्रदर्शनी है। कदी कदी संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और लेखक लोग अपनी कला दी खास रूप दे प्रदर्शनी कराया करते हैं, पर उस महान कलाकार दी प्रदर्शनी कला दी हर वक्त हो रही है, हर थां ते हो रही है। जिस पासे भी निगाह मारी है कला ही कला है, चाहे आसमान ते झात मारीए, चाहे सागर ते निगाह मारीए, चाहे पहाड़ां दियां चोटियां नूं वेखीए, ते चाहे धरती ते निगाह मारीए,
ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਂ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਔਰ ਮੋਏ ਹੋਏ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਮਧੁਰ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਨ। ਕਹਾਂ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਆਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲਸਫੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਮਧੁਰ ਅਮਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ ਚਮਾਰ ਖੋਜਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੇ ਔਰ ਜੁਲਾਹੇ, ਮਾਮਾਰ, ਕੁਮਾਰ, ਨਾਈ, ਧੋਬੀ, ਕਸਾਈ, ਛੀਂਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸਾ ਛੀਂਬਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਬੁਣਦਾ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਧੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਧੰਦੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਸਫੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਗਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਮਗੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਾਹੀ ਤੈ ਠਾਉ। ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੀੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ
दसे इस बेगमपुरे नूं लभीए, जमीन दे उत्ते जिथे गम नहीं दुख नहीं, तो धरती दे उत्ते ते ऐसा लभना बहुत औखा है। जबकि हर बंदा गम दी सेजा ते ही सुता है, हर बंदा पीड़ा ते हौकियां दे च ही जिंदगी बतीत करदा है। जैसे कि उर्दू दे शायर दा कहना है, कबाबे सीख हैं हम करवटें, हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना कलेश है। इस दुख भरे वातावरण दे च, इस कलेश भरे संसार दे च रविदास कहंदे ने मेरी नगरी दा नां है बेगमपुरा। उत्थे दुख नहीं है, उत्थे होर भी कुछ नहीं है कि ना तशवीश खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उत्थे कोई चिंता भी नहीं है। मनुखता दे उत्ते दृष्टि मारी है ते हर बंदा चिंता दे जी रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी ऐसा ही फरमान करते ने, चिंतत ही दिसै सब को है। सारा जगत चिंता दे विच ही दिखाई दे रहा है, चिंता दे विच ही जी रहा है। चारों पासे देखते हैं मनुख दी अखां दे चिंता, मनुख दे बोलां दे चिंता, मनुख दे चेहरे दे चिंता, उठदियां बैठदियां हौके मनुख दे दसदे ने कि चिंता दे जी रहा है। ते चिंता भविष्य दी ही हुंदी है। पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा, इसकी चिंता। पर रविदास कहंदे ने मेरी नगरी दे चिंता है ही नहीं, जीवन का एक ढंग है। ये नगरी बाहर नहीं है, ये शहर किसी नक्शे दे देखांगे ते नहीं मिलेगा। दरअसल एक हालत है, ये मन की एक अवस्था है, एक जीवन का ढंग है। एक आलम का कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। तुम अपना सकूने कल्ब नाश ना कर। जो कुछ होना है वो तेरे कीतियां टलना नहीं, रुकना नहीं। हाँ, तो इतना ही कर सकता है कि जो कुछ होना है इनू खिड़े मत्थे तस्लीम कर ले, जो कुछ होना है इनू खिड़े मत्थे प्रवान कर ले, जो कुछ होना है उन्होंने अपनी झोली दे छपा ले। तो रविदास कहंदे ने जिस शहर दा मैं वासी, उत्थे चिंता नहीं है, ना तशवीश, खिराज ना माल। खिराज टैक्स। दुनिया दे च रहिंदियां जैसे जैसे बंदे दी धन संपदा वधदी है, माल असबाब वधदा है, तो टैक्स भी वधदा है। तरह तरह दे ओनू टैक्स भी देने पैंदे, खिराज भी देना पैंदा है। लेकिन रविदास जी महाराज कहंदे ने कि संपदा वधदी जा रही है, धन वधदा जा रहा है, परम आनंद वधदा जा रहा है, पर मेरे ते कोई टैक्स नहीं, मेरे ते कोई खराज नहीं किसी प्रकार का भी। हालांकि बैरूनी दुनिया च असीं देखते हैं कि मनुख दा सुख वधे, मनुख दा आराम वधे, मनुख दी दौलत वधे, मनुख दी संपदा वधे, ते उहदे नाल ऐ भी एक चिंता वधदी है, दुख वधदा है कि टैक्स वधेगा, खराज देना पेगा। पर रविदास जी महाराज कहने ना तशवीश, खराज ना माल। जो माल मेरे कोल है उस ते मैनू खराज नहीं देना पैंदा, टैक्स नहीं देना पैंदा। सवाल इत्थे पैदा होंदा है माल की है? माल ऐसा है, दुनियावी दौलत नाल उसनू खरीदना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। सोने दियां मोहरां दे के निश्चिंतता खरीदनी बड़ी औखी गल है। सोने दियां मोहरां दे के दया, शील, संजम बाजार दे चों नहीं मिलेगा। संतोख ते सबर ये किसी दुकान तो नहीं मिलेगा, किसी बाजार दे च नहीं मिलेगा।
ये ऐसे गुण ने, ऐसा माल असबाब है जो दिन दुनिया दे बाजार दे च नहीं मिलेगा। स्वयं भगत कबीर ने इसनों इस ढंग नाल बयान किया है कि राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल। ये जिहड़ा पदार्थ, ये जिहड़ा माल तू प्राप्त किया है, ऐ कबीर, इस पदार्थ की गठड़ी किधरे खोली ना। इस माल असबाब की गठड़ी किधरे खोली ना। क्यों? कि ऐसा बैरूनी दुनिया विच कोई बाजार ही नहीं है। राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल। नहीं पटन, नहीं पार खो, नहीं गाहक, नहीं मोल। कोई पटन नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिथे बैठ के इस पदार्थ को बेचा जा सके। भगत कबीर कहते ने, जे मबा दा इस अमर पदार्थ नो, इस दैवी गुणा दी गठड़ी नो मैं दुनिया दे बाजार दे खोल भी लवां, जैसे कोई हीरियां नू वेचे उत्थे जिहड़ा कोलियां दा बाजार होवे। कोई सोना वेचण उत्थे चला जाए जिस बाजार दे लोहा बिकदा है। कोई हीरे लाल पन्ने जवाहरात उस थां ते वेचण चला जाए जिथे इट्टां बिकदियां ने, लकड़ां बिकदियां ने। ये गल सुभाएमान ते नहीं, लेकिन कबीर कहते मैनू ऐसा मजबूरन ये हीरियां दी पंड उत्थे खोलनी पई है जो बाजार ही कोलियां दा है, जो बाजार ही पत्थरां दा है, जो बाजार ही लोहे दा है। मजबूरी है कि जिहड़े हीरे मेरे कोल ने, इन्हां दा कोई बाजार ही नहीं है। दरअसल दुनिया दे किसे बाजार दे च भी चले जाइए, सबर कित्थों मंगीए, संतोख कित्थों मंगीए, केड़ी दुकान तो मंगीए, सील संजम दया किस दुकान तो मंगीए। ये दैवी गुणा दी दौलत, इस दे कोई बाजार नहीं ने। नहीं पठन, नहीं पारखो। आम बाजार दे च भगत कबीर कहंदे जे मैं बैठ भी जावां तो वाकई ये रब दियां महान गल्लां आम बाजार विच ही कहणियां पैंदियां, आम दुनियादारां दे सामने ही रखणियां पैंदियां ने, जिथे वाकई ऐसा देखण दे चाया है कोई पारखू ही नहीं होंदा। क्योंकि कोलियां दी मंडी दे ते कोलियां दे पारखू आणगे, पत्थरां दी मार्केट दे पत्थरां दे जानकार आणगे, लक्कड़ मंडी दे लकड़ां दे खरीदार आउणगे ते लकड़ां दे पारखू आणगे। ये केड़ी लक्कड़ है, चंगी है, माड़ी है, इमारती है, जलाऊ है। लकड़ां दे ही खरीदार आउणगे लक्कड़ मंडी दे ते लोहा मंडी दे लोहे दे ही खरीदार आउणगे। भगत कबीर कहंदे ने इन्हां मंडियां च मैं बैठ गया हीरियां दा व्यापार करन लई। हीरियां दी पंड खोल के मैं उत्थे बैठ गया। अक्सर भगत लोगां ने प्रभु दे गीत उन्हां लोकां नूं सुणाए ने जो प्रभु दे गीत ना सुनना चाहते सन ते ना ही उन्हां दी सूझ ते समझ सी। यही कारण है कि भगत जो कहते रहे संसार दा उन्हां बोलां नाल तालमेल नहीं बैठता रहे, संसार विरोधता करता रहे। तो भगत जी कहते ने कोई पारखू ही नहीं है। मैं बैठा, लोकी कोले खरीदते पे ने, इट्टां खरीदते पे ने, पत्थर खरीद रहे ने, लोहा खरीद रहे ने, लकड़ा खरीद रहे ने, तो मैं पोटली खोल के बैठा हाँ। मेरी तरफ कोई आमदा ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं, कोई पारखू नहीं। नहीं पटन, नहीं पारखू, नहीं गाहक, फिर कोई खरीदार ही नहीं, गाहक ही नहीं है। जो चीज मेरे कोल है इसका कोई खरीदार ही नहीं है। देखण दे चाया है एक राजनीतिक दे पिछे जितनी भीड़ चल पैंदी है, एक धनवान दे आले जितनी दुनिया मंडलाउंदी है, अध्यात्म दर्शी दी जीवदियां जी करीबन करीबन संसार ने विरोधता ही कीती है। उहदे बोलां नाल, उहदी जिंदगी नाल जगत सहमत नहीं होया।
तो श्री कबीर कहते हैं कोई ग्राहक ही नहीं है। ते जे मवा दा इस बहुती भीड़ दे जो कोलियां दे ग्राहक ने, लोहे दे ग्राहक ने, किधरे एक अद इस हीरे दा ग्राहक आ भी जाए, पारखू आ भी जाए, तो नहीं मोल ओ मुल देण नूं तैयार नहीं, वो मुल नहीं उतारता। समझते है ये हीरा है, परखते है उसको, और वो खरीदार भी है लेकिन मुल नहीं देना चाहता। इत्थे सवाल पैदा होता है, मुल की है? कंचन स्यों पाए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन ही उसका मुल है। अपना मन भेंट करिए ते राम नाम दा हीरा प्राप्त करिए, पर यह मुल देण नूं कोई तैयार ही नहीं। इस वास्ते खरीदार होंदे होया भी, पारखू होंदे होया भी, सूझ समझ रखदे होया भी कई मनुख इस महान हीरिਆਂ तो वांझे रह जाते हैं, क्योंकि मुल नहीं उतारते, मुल जो है नहीं देना चाहते। तो आम इन्हां ब्रह्म ज्ञानियां नूं, भगत लोगां नूं ये अपने बोल ऐन संसारी मनुखां दे सामने रखने पे। श्री रविदास जी महाराज कहते ना तशवीश खिराज ना माल, माल मेरा वधदा जा रहा है, धन पदार्थ मेरा वधदा जा रहा है, पर इस ते मैनू कोई खराज नहीं देना पैंदा, इस ते मैनू कोई टैक्स नहीं देना पैंदा। खौफ ना खता ना तरस जवाल। फिर जिस शहर दे मैं रहना उत्थे किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं, डर नहीं। अज तो असीं देखते हैं कि जंगलों के खौफ खत्म होंदा जा रहा है, शहरों के खौफ वधदा जा रहा है। जंगलों के जंगली जानवर घटते जा रहे हैं, शहरों के जंगली जानवर वधदे जा रहे हैं। चार पैरों वाले चौपाए जानवर जंगलों के घटते जा रहे हैं, दो पैरों वाले जानवर वधदे जा रहे हैं। ते अजोके युग दे चार पैरों वाले जानवरों का इतना खतरा नहीं रहा, दो पैरों वाले जानवर का खतरा वध गया। प्राचीन समय दे चौपायां का खतरा सी, और उन्हां तो बचाव दे ही सारे उपराले करने पैंदे सन, साधन जुटाने पैंदे सन। सारी सारी रात अग बाल के रखनी पैंदी सी, कोई शेर ना हो जाए, कोई चीता हमला आवर ना हो जाए, या फिर सप्पां तो बचण दे उपराले करने पैंदे सन, हाथियां तो बचण दे उपराले करने पैंदे सन। अज ते सारे उपराले वसीले ने इस दो पैरां वाले जानवर तो किस ढंग नाल अपने आप नूं बचाईए ते अपने आप नूं सुरक्षित करिए। श्री रविदास जी महाराज कहंदे ने जिस शहर दा मैं वासी, उस शहर दे खौफ नहीं है, डर नहीं है, ना कोई डरांदा है ना कोई डरदा है। दरअसल यही ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते ने, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। डराना दुष्टपना है, डरना कायरता है, बुजदिली है। बुजदिल भी परमात्मा तो दूर है, पर जालिम भी परमात्मा तो दूर है। बहुत वड्डा भयानक मानसिक रोग है डरना ते डराना। इस तो भगत उच्चा जीवदा है। तो भगत रविदास जी महाराज कहते ने जिस शहर दा मैं वासी, उत्थे खौफ नहीं है, खता उत्थे धोखे भी नहीं है, उत्थे छल नहीं है, उत्थे कपट नहीं है। जिस दुनिया दा मैं वासी हाँ, जिस शहर दा मैं वासी हाँ, उत्थे धोखा नहीं है। धोखा देना, धोखा खाना, इन्हां दोहां तो उच्ची जिंदगी है, इन्हां दोहां तो उच्चा जीवन है। ते जवाल कहंदे ने ढेंदी कला नूं, पस्ती नूं। उनते आलमां दा कहना है हर कमाले रा जवाल। कोई ऐसा कमाल नहीं जो जवाल दी तरफ नहीं जाता, कोई ऐसा चढ़ना नहीं जो ढेंदी कला दी नहीं तरफ नहीं जाता। ऊचंग नीचंग नाना सो मूचंग। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना,
ऊंचा चढ़े सो जाए भयाला। जो ऊपर जा रहा है आखिर थल्ले आएगा, जो ऊंचा उठ रहा है आखिर थल्ले आएगा। बच्चा वध रहा है, ताकत वध रही है, सुंदरता वध रही है, शक्ति वध रही है। अज बुढ़ा हो गया, हुण घटना घट जाएगा। हुण ढेंदी कला, हुण जवाल, शरीर जवाल दी तरफ जाते ने, पहाड़ जवाल दी तरफ जाते ने, सूरज चंद तारे जवाल दी तरफ जाते ने। स्वयं गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगनं घटंत गिरतर्स खंडन घटंत ललना भ्रात मोहितम। आखिर स्त्री दा मोह, भरावां दा मोह भी एक शिखर ते पहुंच के घटना शुरू हो जाता। पुत्रां दा मोह भी एक शिखर ते पहुंच के घटना शुरू हो जाता है। इस तरीके नाल सूरज भी घटदा है, चंद्रमा भी घटदा है, पहाड़ भी घटदे ने, जमीन भी घटदे ने। ते जो घटदा है आखिर मिटदा है, जो वधदा है वो घटदा है, जो घटदा है वो मिटदा है। ये नियम सब ते लागू है, एक ते नहीं लागू। वो परमात्मा या जो परमात्मा नाल जुड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, ना घाट हैं ना बाद हैं, ना घाट बाद होत हैं। ईश्वर दे च, अकाल पुरख दे च ना घटना है ना वधना है। बाकी हर चीज वाधे दी तरफ जाती है, ते वाधे तो बाद फिर घाटे दी तरफ जाती है, ते घाटे तो बाद फिर मिट जाती है। वधना घटना मिटना ये नियम हर एक ते लागू है, हर वस्तु ते, हर जीव ते, हर आकार ते। पर श्री रविदास जी महाराज कहते जिस शहर दा मैं वासी हाँ उत्थे जवाल है ही नहीं, उत्थे घटना है ही नहीं। ते जब घटना ही नहीं तो फिर मिटना भी नहीं है। अमिट दुनिया की प्राप्ति हो जाती है, अमिट संसार, अमिट आनंद, अमिट सुख जो नेस तो नाबूद हो ही नहीं सकता। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गह पाई, उआ खैर सदा मेरे भाई। उस शहर दे सदीवी खैर बने हुए है, सदा ही खैर, सदा ही चढ़दियां कला, कदी माड़ी खबर नहीं आउंदी। जमीन दे उत्ते कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे रोज कोई ना कोई माड़ी खबर ना आवे, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जिथे माड़ियां खबरां अखबारां दे पढ़न नूं मिल जो है ना मिलन। पर श्री रविदास जी महाराज कहते जिस शहर दा मैं वासी हाँ उत्थे सदीवी खैर है, कदी कोई माड़ी खबर उस शहर दी है ही नहीं। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गह पाई, उआ खैर सदा मेरे भाई। हे मेरे बिरा उत्थे सदीवी खैर है, उत्थे सदीवी आनंद है। मैं उस शहर दा वासी, मैं उस नगरी दा वासी, और उस नगरी दे वासी ही सारे लोग तुसी बनो। हकीकत है बैरूनी दुनिया दे जिस मुल्क दे सुख ज्यादा होवे वो मुल्क बाकी लोगां लई अपने मुल्क दे दरवाजे बंद कर देते हैं। दुखी लई, कमजोर लई, गरीबां लई अपने मुल्क दे द्वार बंद कर देते हैं। ऐसा असी धरती ते देखते हैं। एक प्रांत दे बहुत कुछ होवे ते बहुत कुछ प्राकृतिक संपदा होवे, वो प्रांत भी दूसरे प्रांत लई द्वार बंद करता है। एक व्यक्ति को बहुत कुछ हो जाए तो बहुत कुछ होंदे आए वो दूसरे व्यक्तियों लई दरवाजे बंद कर देता है। पर रविदास कहते जिस शहर दा मैं वासी हाँ बेगमपुरे दा, इस शहर दे बूहे हर एक लई खुले ने। कोई भी आवे इस बेगमपुरे दे वसे ते आनंद लवे, सुख चैन लवे। मैं सब नूं आवाज मार रहा, सब नूं ढडोरा पिट के बुला रहा।